ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو نے لگاتار پریشر بنایا، دباؤ بنایا، چالاکی دکھائی، لیکن کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہو سکی۔ اور ایک بار پھر اسرائیل کا آرمی چیف اپنی سرکار سے کہہ رہا ہے کہ ہر حال میں ہمیں سمجھوتا ہی کرنا ہوگا، ہمیں حماس کے ساتھ ڈیل کرنی ہوگی۔ ہماری آرمی نے، انٹیلیجنس نے، خفیہ ایجنسیوں نے پوری کوشش کر لی ہوسٹیج تک پہنچنے کی، لیکن کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہو سکی۔ اور اگر ہم نے اگلی کوئی بھی کوشش کی پورے غزہ کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے، پورے غزہ میں حماس کو ختم کرنے کے لیے، تو جو ہمارے ہوسٹیج ہیں، جو ہمارے قیدی ہیں، وہ اپنی جان سے مارے جائیں گے، ہم ان کو زندہ نہیں بچا سکتے ہیں۔ اس لیے ہمارے پاس یہی آخری آپشن بچا ہوا ہے کہ ہم ڈیل کر لیں۔ اسرائیل کا اخبار ہے ٹائمز آف اسرائیل، اور اس نے یہ خبر شائع کی ہے، ٹائٹل ہی لگایا "There is a hostage deal on the table, we need to take it"۔ یہاں ہوسٹیج ڈیل ٹیبل پر رکھی ہوئی ہے اور ہمارے لیے ضروری ہو گیا ہے اس ڈیل پر عمل کرنا، اس کو عملی جامہ پہنانا۔ اور ایال زمیر جو اسرائیل کا آرمی چیف ہے وہ یہ بات کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس ڈیل کو، اس سمجھوتا کو وٹکوف جو امریکی ایلچی ہے اس نے بھی اپروو کر دیا ہے، اور بنجامن نتنیاہو کے پاس اس مرتبہ بھی کوئی آپشن نہیں بچا ہے۔ آج سے 15 دن پہلے بھی حماس نے سیز فائر کے ایک سمجھوتے کو، ایک پروپوزل کو منظور کر لیا تھا، آفر کر دیا تھا کہ ہم منظور کر رہے ہیں، اور اب اسرائیل کی باری ہے، اور اسرائیل نے 4 دن کا ٹائم لیا ریویو کرنے کے لیے، اس کا جواب دینے کے لیے، اور ریویو کے نام پر اسرائیل نے 60,000 سے زیادہ آرمی کو غزہ پٹی میں بھیج دیا۔ اسرائیل نے ایئر اسٹرائک کو تیز کر دیا، اپنی نیوی کو بھیج دیا، اور اسرائیل کو لگا کہ جب یہ پریشر بنے گا، جب یہ دباؤ بنے گا۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے غزہ پٹی میں امدادی سامانوں کے جانے پر بھی پابندی لگا دی۔ اس کے باوجود اسرائیلی آرمی اور ایجنسی ہوسٹیج تک نہیں پہنچ سکی، اور حماس کے اندر بھی یہ ہمت اور حوصلہ تھا کہ اس نے سرنڈر نہیں کیا، بلکہ حماس نے اپنی جوابی کارروائی کو تیز کر دیا۔ حماس کے ریزسٹنس میں اضافہ ہوا، اور حماس نے ایسے کئی آپریشن کو انجام دیا جو پچھلے 1 سال میں اسرائیل کے خلاف غیر متوقع تھا۔ اسرائیل کو حماس کی طرف سے اس طرح کے آپریشن کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ پچھلے ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ کہیں اسرائیلی آرمی کو حماس کے لڑاکوں نے، فائٹرز نے گھر کے اندر جال میں پھنسایا، کہیں سوسائڈ بم سے اٹیک کیا، کہیں سرنگ میں گھسا کر اس کو مارا، الگ الگ طریقے سے ٹارگٹ کیا، اور اسرائیل کو زبردست دھچکا لگا۔ کل بھی میں نے بتایا کہ اسرائیل کا ایک اہم ترین کمانڈر مارا گیا، اس کی کئی بٹالین اس میں ہلاک ہو گئی۔ اب دوبارہ اسرائیل کی جو آرمی ہے، اسرائیل کا جو ڈیفنس منسٹر ہے، جو فورن منسٹر ہے، وہ دباؤ بنا رہا ہے کہ ہمارے پاس آپشن یہی بچا ہے کہ ہم ڈیل کر لیں، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ ادھر امریکی ایلچی نے بھی اپروو کر دیا ہے، اور اب خبر یہ آ رہی ہے کہ سیز فائر کے اگلے مرحلے کے لیے بات چیت اب قطر یا مصر میں نہیں ہوگی، بلکہ سیز فائر کے اگلے مرحلے کے لیے بات چیت متحدہ عرب امارات میں پوسیبل ہے، یعنی ابو ظبی میں، یا پھر یورپ کے کسی ملک میں، یعنی قطر اور مصر کو اس سے الگ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ادھر جو ہوسٹیج کی فیملیز ہے، جن کو قیدی بنایا گیا، ان کے جو رشتہ دار ہیں، وہ بھی یہی لگاتار مانگ کر رہے ہیں کہ اب مزید کوئی اور جنگ نہیں چاہیے، غزہ پٹی سے اسرائیلی آرمی کو باہر نکلنا ہی ہوگا، کیونکہ مزید اگر کوئی اٹیک غزہ پٹی پر ہوتا ہے، فل کنٹرول حاصل کرنے کے دعویٰ پر عمل کرتا اسرائیل، تو ہوسٹیج زندہ نہیں بچ پائیں گے۔ اور ابھی تک حماس کے ہاتھوں میں تقریباً 50 ہوسٹیج ہیں، جن میں سے 20-22 کے زندہ ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، بقیہ کے مردہ ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، اور یہ اسرائیل کا دعویٰ ہے۔ حماس نے ابھی تک اس بارے میں کوئی بھی وضاحت نہیں دی ہے کہ کتنے زندہ ہیں، کتنے مردہ ہیں، لیکن پچھلے 15 دنوں میں بنجامن نتنیاہو نے جو چالاکی دکھائی، جس طرح سے ہوشیاری دکھائی، پریشر بنایا، حملہ تیز کر دیا، لیکن فلسطینی قوم ثابت قدم رہی، پیچھے نہیں ہٹی، لگاتار مخبری کرنے کی کوشش کی، سرنگوں تک گھس گئی۔ انہوں نے اپنی مہیلا ونگ کو یا وومن آرمی کو فلسطینیوں کا لباس پہنا کر بھیجا کہ تم فلسطینی عورتوں کا کپڑا پہن کر جاؤ، اور اس طرح لگے کہ تم لٹی ہوئی ہو، تمہارے اوپر حملہ ہوا ہے، اور پھر حماس کے لڑاکے تمہارے جال میں آ جائیں گے، پھر لوکیشن لیک ہو جائے گی۔ امریکہ کی CIA کو لگایا گیا، دنیا بھر کی ایجنسیز کی مدد لے لی اسرائیل نے، لیکن ایک بار پھر ایجنڈا میں کامیابی نہیں مل سکی۔ اور زمیر جو ہیڈ آف اسٹاف ہے اسرائیل کا، وہ یہی کہہ رہا اپنی سرکار سے کہ پلیز آپ اس جنگ کو آگے مت بڑھاؤ، آپ فل کنٹرول حاصل کرنے کا جو ایجنڈا اور منصوبہ ہے اس
पर अमल मत करो, वरना जितने 20-22 लोग जिंदा बचे हैं उनको हम जिंदा बचाने में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हैं। और पूरा रिसर्च करने के बाद, पूरा तज्जिया करने के बाद एक बार फिर ये रिपोर्ट सामने आई है। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू की प्रॉब्लम क्या है, वो क्यों समझौते पर अमल नहीं कर रहा है? उसकी एक बुनियादी वजह तो यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू को लगता है कि जिस दिन उसने हमास के साथ डील कर लिया तो उसी वक्त उसकी सरकार गिर जाएगी, वो चीफ मिनिस्टर, वो प्राइम मिनिस्टर के ओहदा पर नहीं रहेगा और उसको जेल भेज दिया जाएगा। क्योंकि जब तक वो प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है जेल जाने से बचा हुआ है। और प्राइम मिनिस्टर इसलिए बना हुआ है क्योंकि उसकी जो पार्टी है, उसकी जो हुकूमत है अलायंस में, तो अलायंस में 2-3 पार्टीज ऐसी है जो डील के खिलाफ है। और जिस दिन डील होगी उन पार्टियों ने धमकी दे रखी है कि हम इस समझौता को ख़त्म कर लेंगे, हमारा अलायंस नहीं रहेगा, अलायंस ख़त्म होगा, सरकार गिर जाएगी और वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी से हटते ही उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी, उसे जेल भेज दिया जाएगा। इसलिए ना चाहते हुए भी बेंजामिन नेतन्याहू यहीं पर टिका हुआ है कि वो डील ना करे। डील करने की सूरत में ये सिचुएशन है, कल मैंने आपको बताया था कि अब जो उसी की सरकार में दूसरे लोग हैं या दूसरी पार्टीज़ के जो जिम्मेदारान हैं वो सब कह रहे हैं कि अगर सरकार गिर जाएगी तो गिरने दो, जेल जाना पड़ेगा चले जाओ। लेकिन इस वक्त इजराइल का फ़ायदा इसमें है कि हमास के साथ डील हो जाए, समझौता हो जाए, वो 20-22 लोग होस्टेज जो ज़िंदा बचे हुए हम कम से कम उनको ज़िंदा वापस ला सके। अगर उनकी भी मौत हो जाती है तो ये इसराइल की तारीख़ में इसराइल के लिए सबसे बदतरीन होगा। उसके अलावा इसराइल को ये भी लगता है और ख़ासतौर पर बेंजामिन नेतन्याहू के हमास से डील करने का मतलब, अपने दम पर होस्टेज को, कैदियों को आज़ाद न कराने का मतलब यह है कि हमने हमास के साथ सरेंडर किया है, हमास के सामने हमें हाथ जोड़ना पड़ा है और दुनिया के सामने ये इमेज न जाए, ये मैसेज न जाए, ये नेतन्याहू को लग रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा मामला है वो यही कि नेतन्याहू की सरकार गिरेगी, उसे जेल जाना पड़ेगा, तैयारी पूरी हो चुकी है। पिछले दिनों में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इजराइल के तमाम लोगों को यह आदेश दिया था ट्विटर पर लिखकर कि वो बेंजामिन नेतन्याहू को जेल न भेजे, उसके खिलाफ जो मुकदमे चल रहे हैं उन मुकदमों को फिलहाल रोक दिया जाए, क्योंकि वो इजराइल के खिलाफ, वो ईरान के खिलाफ उलझा हुआ है, उधर वो हमास से जंग लड़ रहा है। तो अमेरिका तक ने मदद करने की कोशिश की है। लेकिन सच्चाई यही है कि बेंजामिन नेतन्याहू का जेल जाना तय है और जेल जाने से बचने के लिए, सरकार गिरने से बचने के लिए वो टाल मटोल कर रहा है और अपने ही लोगों की ज़िंदगी को वो ख़तरे में डाल रहा है। और कल यानी संडे का जो प्रोटेस्ट था इसराइल का, वो तारीख़ी प्रोटेस्ट था, ज़बरदस्त एहतजाज था। ऐसा लग रहा था कि इसराइल की आधी आबादी सड़कों पर आ चुकी है, वो प्रोटेस्ट कर रही है। इसराइल के कई अखबारात ने सर्वे की बुनियाद पर खबर शाया की है कि इसराइल की 80% से ज़्यादा आबादी सीज़ फायर के हक़ में है, समझौता चाहती है, क्योंकि इस जंग से दोनों परेशान हैं। अगर फ़लस्तीनियों की 60,000 से ज़्यादा की शहादत हुई है, उनके पास रहने के लिए कुछ भी नहीं बचा, इसराइल में भी अमन नहीं है, शांति और सलामती नहीं है, इसराइल के लोग खुलकर अपनी ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हैं। उधर यमन से हौसियों का जब मिसाइल हमला होता है तो पूरे इसराइल में अफरा तफरी मच जाती है। 10 लाख से ज़्यादा इसराइली अपना देश छोड़कर जा चुके हैं। वहाँ जो वर्कर्स थे, जो काम करने वाले थे, वो इसराइल को छोड़कर जा चुके हैं। इसराइल में जो लेबर था, जो वर्कर्स थे, वो सब इसराइल छोड़कर जा चुके हैं। तो इसराइल की इकोनॉमी का नुकसान हो रहा है, वहाँ बिजनेस का नुकसान हो रहा है। तो प्रॉब्लम में दोनों है। अगर गज़ा पट्टी में जानी नुकसान सबसे ज़्यादा हुआ, ये पूरा शहर तबाह हो गया, तो इसराइल की पूरी दुनिया में जो इमेज थी, इसराइल जो इकोनॉमी में आगे बढ़ता जा रहा था, इसराइल से पूरी दुनिया की जो डील हो रही थी साइबर सिक्योरिटी की, हथियारों की, आम की, ये सारी डील भी इसराइल के साथ कैंसिल हो गई है। तो नुकसान में दोनों हैं। और आज भी हमास के सामने इसराइल को अपने एजेंडा में कामयाबी नहीं मिल रही है। इसराइल ने बार बार अपना हदफ और ये एजेंडा बताया कि वो हमास को बेनामो निशान कर देगा, हमास को हथियार डालने पर मजबूर कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी हमास के अंदर रेजिस्टेंस की, लड़ने की सलाहियत है। उसके अलावा फ़लस्तीनियों का हौसला मजबूत है और बार बार दबाव बनाया जाता है गज़ा पट्टी के लोगों पर कि वे इलाका को खाली कर दे, लेकिन वो वहाँ डटे हुए हैं। जहाँ तक बात है गज़ा पट्टी का फुल कंट्रोल हासिल करने की, तो तकरीबन 80 से 84% गज़ा पट्टी पर पहले से इसराइल का मुकम्मल कंट्रोल है। जगह जगह इजरायली आर्मी है, इसराइल के हथियार रखे हुए हैं और इजरायली कैंप लगे हुए हैं। तो पूरे गज़ा पट्टी
पट्टी पर पहले से इजरायली आर्मी का कंट्रोल है, और फिर जो इजराइल दावा करता है कि वो पूरे गज़ा पट्टी का कंट्रोल हासिल करेगा, तो उसके पीछे बस नफसियाती दबाव बनाना होता है, प्रेशर बनाना होता है। और जंगों का उसूल यही है कि आप मैदान में अपने दुश्मन को जितना हरा सकते हो, उससे ज़्यादा ये है कि आप नफसियाती तौर पर, दिमागी तौर पर अपने दुश्मन को कमज़ोर कर दो, उसको उलझा दो, अपना प्रेशर ऐसा बना दो। तो इजराइल यही करता रहा, लेकिन इजराइल की ये जो कोशिश है उल्टी साबित हुई और प्रेशर बनाने में हमास को कामयाबी मिली, न कि इजराइल को कामयाबी मिल सकी। इधर अल जज़ीरा ने एक रिपोर्ट शाया की है जिसमें बताया गया कि सिर्फ भूख की शिद्दत की वजह से भी फ़लस्तीन के गज़ा पट्टी में 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं बचा। गज़ा पट्टी का जो आखिरी हस्पताल था, उस हस्पताल पर भी इजराइल ने हमला कर दिया, और मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट के मुताबिक उस हमले में 14,000 से ज़्यादा की हलाकत हो चुकी है। उसके अलावा गज़ा पट्टी पर इसराइल के हमले को भी 689 यानी 689 दिन हो चुके हैं। कल 690 दिन पूरे हो जाएंगे। 6 अक्टूबर 2025 को 2 साल पूरे हो जाएंगे और ये हमला अभी तक नहीं रुक सका है। शायद अब सीज़ फायर का फैसला हो जाए, क्योंकि अमेरिका ने भी पूरा दबाव बना दिया है और आर्मी चीफ का भी प्रेशर बढ़ता जा रहा है अपनी सरकार पर। लेकिन वही मामला है सरकार गिरने का। अब देखना यह है कि आइंदा दिनों में क्या होता है। फिलहाल गज़ा पट्टी और फ़लस्तीन को आपके दुआओं की अशद ज़रूरत है। आखिर में आपसे गुजारिश है, मिलत टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए। यहाँ QR कोड मौजूद है, इसको स्कैन कीजिए, और स्कैन करने के लिए आपको पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा, या डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, और जो प्लान आपको दिखेगा उसमें से सिर्फ 99 रुपये का प्लान आप ले लीजिए। मिलत टाइम्स आपके लिए लेकर आया है सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें या यहाँ दिया गया QR कोड स्कैन करें, जिसके बाद एक पेज खुलेगा जहां आप 99 रुपये का या कोई दूसरा प्लान चुन सकते हैं। फिर सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करें। उसके बाद अपना ईमेल, फ़ोन नंबर और नाम दर्ज करें और प्रोसीड पर जाएं। एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना UPI ID डालना है। फिर फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम पर जाएं और वहां जो नोटिफिकेशन आया है उसको ओके कर दें। बस आप बन जाएंगे मिलत टाइम्स के सब्सक्राइबर और खुसूसी मेंबर।